My name is Rushan Khan, and I'm really happy to see you guys here. Thanks for coming to our event. Uh, right now, we're going to talk about Google Developer Student Clubs. You all might have heard that we have started one in our own university. And I think that it is a matter of great pride that Amit University Lucknow has its own DSC, considering how there are more than 7,000 technical universities present in India, but only 357 have their own DSC. Uh, so yeah, now you might be wondering what is exactly a DSC? That is exactly what we will be talking about today. We are going to talk about what is a DSC, what are its objectives and goals, how you can become a member of a DSC, how you can contribute, and how you can let DSC help you. So let's start off with what is the DSC. So basically, DSCs are an initiative taken by Google to create communities on campus, which would be based on problem solving, innovation, and technology. Uh, well, at its core, this is what the GDSC is: a student community for people interested in enhancing their skills as a web developer or any kind of developer, or who just want to improve their skills, or people who just are interested in technology and want to enhance their communication skills or things like that. So this is basically what a GDSC is. So now you might be wondering, like, what are the exact requirements that you need to fulfill before joining before joining a GDSC. So I'm glad to tell you that there are no requirements whatsoever. Any student interested in Google technologies or non-Google technologies can become a part of a GDSC. Uh, GDSC is open to students from all domains and disciplines. There are no restrictions whatsoever. So you might want to spread the word to your friends from other courses to see if they like what we are doing here and want to become a member. The only sort of requirement that we do have is the willingness to learn, contribute, and explore new technologies. So now we talk about what are the objectives of our GDSC. The primary objective of a GDSC is to solve real world problems. And that is the best outcome that could come out of any GDSC. If a DSC is able to solve a real world problem, then that is the best possible thing that can happen to a DSC. Because if you think about it, the reason why we are doing any of what we are doing is to be able to help people one day and contribute value to society. And a DSC would be able to give you a platform to do just that. Secondly, our second objective at DSC is to explore and play with new technologies. Exploring new technologies is really encouraged. We want people to have fun learning new technologies so that one day they can build real solutions to problems using the technology that they just learned. Which brings me to my third point, which is uh, the third objective of our DSC is to bridge the gap between theory and practice. Well, often I have seen that students are well versed in how to do something, but they don't have much idea about why they would need it, or why exactly are they doing the things that they are doing, or why exactly are they learning the things that they are learning. Like, what is the reason behind it, and so on and so forth. So at DSC, implementation is our topmost priority. We encourage anything that can help you bridge the gap between theory and practice. Anything which can use to build things that people actually find useful. The fourth objective of our GDSC is to establish a peer-to-peer is to establish a peer-to-peer based learning environment. At our DSC, anyone and everyone can propose a talk and share his or her knowledge with his or her fellow peers, and his peers can in turn do the same. So basically, GDSC is an open platform for everyone to share the knowledge with the world. Our last objective is to help students build their professional networks. College is a great time to do that because shortly we will be in a position where we would be entering the corporate world, and in the corporate world, connections are of the essence. Connections are extremely important. So knowing the right person at the right time might just translate in a job offer for you, to put things into further perspective. So
And that is a summary of our tagline, the tagline of the whole DSC program, which is to connect, to learn, and to grow. So now we talk about how do we plan to achieve these objectives that I was talking about. So how we approach it is we will be holding workshops, seminars, and talks about various technologies. We will be holding hackathons, ideathons, and various contests. We will also be inviting guest speakers and Google community experts to give talks at our events. We will also be holding fun and interactive events in collaboration with other universities. And the universities would not just be limited to other universities from different cities, other universities from different states, but we would also be having collaborations with universities from different countries as well. Also, we will be going on field trips to explore and understand the problems of local businesses that they face on a day-to-day basis, and then we will try to build a solution for them. Although this would be better if everything was in offline mode, but it isn't. But we can still approach this problem through online mode as well. We can search for small businesses online, their social media handles, and then try to approach them to try to build a solution for them. So now we talk about what will the students gain out of this. So these are the professional advantages that the students will gain. So firstly, they will grow their knowledge in a peer-to-peer based learning environment, as I just mentioned. Uh, they will be building solutions for local businesses and their communities. And this is a very important point. They will be learning how to work in a team. They will also be getting an opportunity to collaborate with other developers all over the world. And these are the exclusive benefits which only students from a GDSC enabled university enjoy. So you will be getting a chance to participate in Google exclusive events like 30 days of GCP and solution challenge, etc. Now many of you might be already part of 30 days of GCP, and I think that we should all realize that all this wouldn't have been possible if we didn't have a GDSC at our campus. Also, you would be getting a chance to win awesome prizes and goodies in the above mentioned competitions. You will also be earning exclusive badges on your Google developer profiles by just being a part of the DSC. Also, if you do well at the events that we organize, you will also be eligible to win official certifications as well. So now, this is a small video that I want to show you guys, but please tell me if the sound is coming or not first. Is the sound coming? Yes. Yes, 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 it's yes. audible. Okay. No. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Aplikasi untuk percepat. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students.
So with this, I hope you all have a better understanding of what we do at DSC and how will we proceed about our business and what are our main objectives. So now we have assembled our core team, which consists of domain leads and subject experts. These guys would be willing to help you if you happen to come across any problem with respect to their specific domains. So I'm going to start with the tech lead, which is Ali Zaidi. Hello, Hello. am I audible? Yeah, you're audible. Is Ali audible to everyone? Yeah, please. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay, so good evening, everyone. This is Ali Zaidi. I'm the appointed I'm the appointed tech lead for GDSC Amity University Lucknow this year. A little about me: I'm a CS major, currently in my fifth semester. I'm also presently interning at a startup as a full stack developer, working mainly in the MERN stack and AWS. So I'm really excited to be a part of GDSC. I mean, thanks to Rushan for taking the initiative for bringing GDSC to Amity. So I think it provides a really great opportunity for me to learn from all the talented people from around me, and also as a core member, uh, I want to share whatever little knowledge I have gained during my growth as a computer science student and a developer with others, especially freshers who are very new to the field. As a fresher myself, I was very fortunate to have great seniors who taught me a lot of things and made me overall a lot more passionate about the field. So, in my tenure as a tech lead, I will try my best to do the same. So, as a tech lead, my primary responsibilities will be to oversee all the technical departments in the club, work with the club lead to make sure that the club is active and events such as workshops, seminars, etc., are held frequently for the benefit of all. Try my best to be approachable and resolve any queries any student might have, or at least guide them to the right people and resources if I can't solve it myself. And also, I'll be responsible for overseeing all the technical events that the club hosts. Thank you. Okay, so thanks for your brief introduction, Ali. Uh, the next person we are going to talk about is Nishant Jaiswal, who is the management lead. So Nishant, are you here? Yeah, you are audible. Okay, Nishant, thank you for your introduction. Next is Adiba Khan, who is the public relations lead. Hey there, I'm Adiba Khan, Public Relations Lead of Amity University Lucknow campus. I'm a student of BTech Computer Science and Engineering third year. Currently, I am interning at Coding Ninjas as Ninja Entrepreneur, and I am the campus facilitator of 30 Days of Google Cloud program of Amity University Lucknow campus. I'm really very excited to take the responsibility of Public Relations Lead of Amity University Lucknow campus. I love connecting with people, getting their popular opinion, and solving their problems. Next slide, please. Public Relations Lead's office comes with great sense of responsibility. As Public Relations Lead, I would be responsible for maintaining the public image of the club, representing the club at different occasions, responsible for finding sponsors and speakers. Thank you, everyone. Have a great day Okay, ahead. thanks, Adiba. Next is Juhi Dwivedi, who is the media and outreach lead. Hello, sir. Am I audible? Yeah, you're audible. So, hello everyone. Good evening. I'm Juhi Dwivedi, and I've been appointed as the Media and Outreach Lead for GDSC. I will strive hard and try my best to build a good social image for GDSC. Also, by being the outreach lead, it will be my responsibility to develop a good relationship
between the community members and the organization team. So next slide, please. So I'm a first year student, a fresher, and still I had heard great things about GDSC. So just imagine, with a good social image and good representation at the social networking sites, how many people we will be able to influence and impact. As the common sayings goes, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. So next slide, please. It will be my responsibility to strengthen the relationships between the organization and the community, organizing outreach campaigns, maintaining the social image of the organization, creating or designing promotional content for target audience, serving as the communication link between the organization and the community, building strong online communities, engaging users authentically on social media, etc. Thank you, everyone. I hope that I could stand up onto your expectations. Thank you. Okay, thanks a lot, Johi. So the next we have gender diversity lead, who is Soumya Srivastava. Am I audible, sir? Yeah, you're audible. Good evening to one and all present here. My name is Soumya Srivastava and I'm a student of BTech CSE second year. I have been selected for the post of Gender Diversity Lead in GDSC Amity University, Lucknow campus. Talking about the club, I have been hearing about this club from my friends in different colleges and I always wanted to be a part of this. And now being a part of a non-technical core team as diversity lead, I will make sure a maximum number of students to take part in all the workshops, seminars, and hackathons, events, etc. that will be held in upcoming days by our club, irrespective of their gender, course, and stream. I'll encourage them to discover more fields like machine learning, IoT, artificial intelligence, Android development, cloud, etc., and enhance their knowledge. This will help them to find their best interest. I myself am a beginner right now. I'm also discovering my interest. And I know being a part of this club, I'm going to learn a lot from our respected peer mentors. Now, so next slide. That is, I have observed ratio of male field is more than female. So my main focus as a lead will be to motivate more girls to contribute to technical field. Nowadays, we are seeing a lot of startups coming up in India, but mostly they are driven by males. So I'll encourage girls to be part of startup ecosystem and come up with more ideas. Thank you. And yeah, I'm always available for any query related problem. You can text me anytime on the social media handle that I have mentioned. Thank you. Okay, thank you for your introduction, Soumya. The next we have the content creation lead, which is Sayyid Ali Gibran Rizvi. Greetings, everyone. This is Sayyid Ali Gibran Rizvi, as Roshan already told you. So I belong to first year computer science student. I would request Roshan to take us to the next slide, please. Okay. And the newly appointed content creation lead in this university. As I already mentioned, I am still a fresher at this university. I heard great things about the Google Developer Student Clubs during my schooling days. So my main focus was to join the club and enjoy working as a team. I always love being tech savvy, responsible guy, which is why I'm elated to take the responsibility on my shoulder. I'm open to every content related matter. It will indeed be an honor for me to work with this collaborative and conscientious core team. Alone, we can whistle a symphony, but together as a team, we can play a whole orchestra. So Roshan, please, can you take us to the next slide? Now comes my responsibilities. So as the content creation lead, I will always strive to create professional and error-free documentation to establish the credibility with the audience. I will always analyze the target audience to get the idea of the tone and knowledge level of the document so that I can tailor it accordingly. Thank you. Thank you, Ali.
So the next lead is our web lead, which is Tausif Ahmad. So are you here, Tausif? Yes. Yeah. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Why are you laughing? Don't laugh, okay? Yeah. So, hello everyone. I am Tausif Ahmad. I am currently in fourth year, seventh semester, and I am the web lead. So, Drushan, can you shift Yeah, to the yeah. next slide? Yeah. So the main objective of my position is I will organize workshops and boot camps related to web development and also software development in general, because web development is very small part of software development, and it is better that everyone gets to learn the general concepts of software development so that they can shift from web development to mobile development, let's say, or anything else. And I'll help students if they have any queries related to anything related to software engineering, not just web development. And if they want, I can also help them in building good projects which will add weight to their resume if they so desire. Yeah, that's it. Thank you. Okay. Thank you, Tausif. The next lead that we have is the Android lead, which is Venkatesh Chaturvedi. Are you here? Am I audible? Yeah, you're audible. Okay, hello guys, I'm Venkatesh Chaturvedi. I'm the Android lead. फोटो मत देखना मेरी, मैं रियल लाइफ में ज़्यादा बुरा दिखता हूँ. Anyway, I'll be leading the Android department, so you guys have any query related to Android, you can always contact me. And I'm currently working on a customized fork of the Android open source project. If you guys know, that is the entire source code of the Android operating system. And that's it, I guess. You can always contact me and I will be there. And you can contact me through the Telegram handle that I provided on my slide. Thank you. Okay. Thank you, Venkatesh. The next lead that we have is the cloud lead, which is Subhanshu Mohan Gupta. Subhanshu, are you here? Hello, Subhanshu. Hello, Tausif. Hello, everyone. Myself, Shubhanshu, and I'm a cloud lead in GDSC. And I'm a third year student currently pursuing XCS. And I have a quite experience in cloud, and I'm still learning AWS. So I want to and I want to pursue this as my career. And I find I enjoy meeting new people and finding ways to help them having an uplifting experience. So if you have any queries related to cloud or any DevOps tools, I am there to help you. And if you want to connect to me, my email is mentioned in the slide, or you can or I will send you the portfolio link. You can connect me through it. Thank you, everyone. Okay, thank you, Subhanshu. Next, we have the data science lead, which is Radha Agarwal. Yes, am I audible? Yeah, you're audible. Okay. Good evening, everyone. I'm really very excited to be a part of GDSC, and I'm really thankful to Roshan Khan for giving me the opportunity for being the co-member in GDSC. Currently, I will be working as a data science lead in GDSC, and I'm working as a data science intern in SSCR organization. And I'm really very thankful, and I will help the students who are interested in data science and how they can start in the field of data science. And if the students having any query related to this particular domain, they can reach to me. Like, I've given my Telegram user ID, so if they will have any query related to this domain, they can message me, and I will be really helpful. Thank you. Okay, thank you, Radha. Next, we have Mohit Sethi, who is the machine learning and artificial intelligence lead. Mohit, are you here? I think he's not here with us. Okay, so Mohit You will can move on. Hello, is Mohit here? I think he's not here. You can move on. Okay. So Mohit will be responsible for all doubts and queries related to ML and AI. You can feel free to hit him up on the Discord channel. He is
He is on our Discord and will be more than happy to help you guys. So with this, I now welcome our faculty advisor, which is Dr. Brahma Hazela, to briefly address the students. Is Mr. Brahma here? So it looks like he's not here. So I think he must be joining us in a while. So till then, I actually had a session with guest speakers planned. So the guest speakers here are Tausif Ahmed, Nilesh Singh, and Harsh Malra. They actually wanted to inform you guys about the placement procedures. They actually have some important information that they want to convey to you guys. So Tausif, Nilesh, and Harsh. Yeah, just a second. I'll have to call them. Hello, Roshan. Hello. Yeah. Yeah, Malwa is coming in a few minutes. Okay, so if you can start briefing the students about what you guys wanted to talk about. Yeah, basically we wanted to talk about how the placement go about in MIT Lucknow, only specifically to Lucknow. So the thing is, yeah, Harsh has also come. Harsh has arrived. Yeah, I think so. Harsh, can you speak? Hello. हेलो हाँ क्या वो किस टॉपिक पे बात हो रही है अरे बस डिसाइड हो चुका है ना प्लेसमेंट हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे थे अरे उसी निलेश बारे आएगा? में नहीं पता नहीं वो कॉल नहीं उठा रहा है चलो हम ही लोग बता देंगे ना क्या फर्क पड़ता है हाँ, ठीक है तो हाँ सो व्हाट वाज आई सेइंग हेलो Yeah, you are audible. म्यूट कर लो हाँ, हर्ष Okay, so we wanted to talk about placements because I think it's important for everyone. The placements are important for everyone. So the thing is, in MIT University, a lot of companies don't come. That's what happened this year was there were some companies that were paying good amount of money and they didn't come for MIT University Lucknow specifically. They came for you will be told that they will come to Lucknow as well, but they don't. They only come for Noida campus and the placements are done there and you don't get to sit in those placements, right? So so what should you do then if some good companies don't come at your campus, right? So you will have to prepare yourself to sit off campus in these good companies. So Harsh Madla can elaborate further on how to prepare for those off-campus placements. Harsh? हेलो भाई हाँ यहाँ पे कोई है Yes, क्या जिसको audible. हिंदी नहीं आती इसको हिंदी नहीं आती क्या ऐसे आती है ना सबको
ऑनेस्टली Yes, sir. हाँ ठीक। हाँ तो अभी तुम लोग कौन कौन सी ईयर के हो? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन कौन सी ईयर के? Sir, first semester. First semester. So first. First semester. So first semester. Third semester. नहीं, third year I guess. थर्ड ईयर, अच्छा फर्स्ट Third तो मतलब year. फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक सब है। ओके, तो अभी फर्स्ट ईयर वाले तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मतलब अभी तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, तुम लोग ने क्या सी प्लस पे पढ़ना चालू किया है या फिर Sir, C plus coding? ओके, सी प्लस प्लस। Sir, C language. ओके, अभी सी स्टार्ट हुआ। सी कॉलेज में स्टार्ट हुआ है। तुम लोगों ने खुद से कितना मतलब बेसिक तुम्हारा पूरा लैंग्वेज पे कमांड है? सी प्लस प्लस अगर कुछ भी टास्क है तो हो जाएगा? अभी नहीं। Java. ओके ओके, हाँ लेकिन Java. सिंटैक्स विंटैक्स में कितना कमांड है? मतलब अच्छे से सब कुछ बेसिक सिंटैक्स आता है अब लोगों को? ओके हाँ अब ओके ओके, हाँ तो अभी के लिए वैसे कुछ लोग सी प्लस प्लस है, कोई जावा पाइथन। तो मैंने भी मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने भी पाइथन से स्टार्ट किया था। तो ऐसी लैंग्वेज की कोई ज़्यादा इशू नहीं है अगर आप पाइथन से कर रहे हो। जावा आजकल तो सब भी एक्सेप्टेबल है, मतलब जितनी भी फैंग की कंपनीज भी है उन सब में ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको सी प्लस प्लस ही करना है। तो पाइथन से भी, और इसमें टाइम लिमिट की ऐसी प्रॉब्लम मतलब बहुत रेयर है। अगर आप कोड फोर्सेस में बहुत हायर रेटिंग के क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें इशू आ सकता है, लेकिन मोस्टली पाइथन की भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लैंग्वेज का तो कुछ है नहीं। तो तुम लोगों में से अभी मतलब लीड कोड किसने स्टार्ट किया लगाना? यस सर। ओके, तो तुमने कितना मतलब नहीं क्या नहीं, है? एक सेकंड वेट, पहले इनको बता दो लीड कोड है क्या, फिर फिर बता। नीलेश को बुलाओ भाई, नीलेश नहीं आया क्या? नहीं आया, कॉल करो उसको। भाई वो आएगा 5 मिनट में। He messaged me. He said he will be coming in 3 minutes. बता दो या मैं बता दूं? दोनों में से कोई एक बता दो। हाँ बता दो फिर, तुम्हें बता। ठीक है, सो लीड कोड प्लेटफॉर्म है एक, leadcode.com वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुमको कोडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं जो बेसिकली कंपनीज के प्लेसमेंट इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे गूगल ने 100 क्वेश्चन पूछे, 200 जो भी, तो मोस्टली तुमको वो लीड कोड पे मिल जाएंगे। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं कि मतलब तुमने पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया, वैसे भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने को लीड कोड पे मिल जाएंगे। और वहां पे ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस हैं जो हर हैकर रैंक उतना अच्छा नहीं है। हैकर रैंक बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुमको मतलब अच्छा होना है काफी तो लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो तुम लोग leadcode.com पे जाके चेक कर सकते हो, उनके प्रॉब्लम सेट्स काफी अच्छे हैं। तो देखो हाँ देखो, जैसे अभी किसने मेंशन किया हैकर रैंक, तो देखो जब स्टार्ट किया था मैंने भी, तो मेरे को लीड कोड के बारे में उस टाइम पता नहीं था, तो उस टाइम हमने भी हैकर रैंक से चालू किया था। लेकिन हैकर रैंक कुछ टाइम लगाओ, लेकिन फिर लीड कोड में स्विच करके देखो तो बहुत अच्छा आपको उसमें दिखाई देगा कि उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है, उसका जो कम्युनिटी है वो हैकर रैंक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लीड कोड की बेस्ट चीज़ ये है कि लीड कोड जो स्टार्ट हुआ था उसका मेन पर्पज़ यही था कि जो प्लेसमेंट में पूछे गए हैं फैंग में उसी के क्वेश्चन हो, ये नहीं कि कोई भी रैंडम ऐसे है। तो मतलब वो क्या करता था, जो भी जैसे किसी का गूगल कंपनी में निकल गया जॉब, तो वो क्या करेगा, लीड कोड के डिस्कशन में जाके वो क्वेश्चन को बता देगा कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ये इनपुट आउटपुट था। तो लीड कोड वाले उसी को लेके डिस्कशन से उसको प्रॉब्लम सेट को अपने क्वेश्चन में ऐड कर देते थे। तो ये है कि जो लीड कोड है उसमें आपको बिल्कुल मतलब गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर जितनी भी कंपनीज है उसके जो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो उसमें मिलेंगे। और मेन चीज़ जो है होता है कि सॉल्यूशंस की, आपको सॉल्यूशन की कितने आराम से मिले, क्योंकि आपको बस मतलब क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो कोई रिसोर्स होना चाहिए ना कि कहाँ से पढ़ोगे। जो हैकर रैंक है और जैसे कोडशेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, इनके साथ मेन इशू ये है कि उनके तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे आराम से। क्वेश्चन जो ठीक है तुम्हें एडिटोरियल मिल जाएगा, लेकिन जो तुम चाहते हो कि बिल्कुल वीडियो मिल जाए, मेरे को पूरा समझा दे कोई सामने से, तो ये इशू है। लेकिन लीड कोड क्योंकि सबसे पॉपुलर है तो इसके सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे। और खासकर अगर तुम लोग में से लव बब्बर को जानते होंगे तो उसने कोई शीट भी निकाल रखी है 450 GSA क्वेश्चंस की। तो उसका वही मेन मोटिव है कि तुम 450 क्वेश्चंस लगा के तुम काफ़ी वैरायटी को कवर कर लो। तो लव बब्बर की जानते हो एक शीट के बारे में? वैसे तुम फर्स्ट ईयर वाले को तो मुश्किल है अभी, नया नया। यस सर, रोड मैप दिखा है सर। हाँ तो सही है फिर। हाँ तो
वो 450 क्वेश्चंस में काफ़ी वैरायटी कवर्ड है, और मेन चीज़ जो बहुत सारे यूट्यूबर है वो उसी शीट के बेसिस में वीडियोस निकाले, अपनी पूरी प्लेलिस्ट निकाले जो सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो ये मेन बेनिफिट ये है। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं अभी कोड शेफ लगाने लग जाए, कोड फोर्सेस लगाऊं, तो मेन इशू तुमको ये आएगी, तुमको उसके रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे। मतलब मैंने भी ट्राई करता हूँ, मतलब उसके क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो ऐसे एक्सप्लेन होंगे तुमको, मतलब वो समझ ही नहीं आएगा कि सॉल्यूशन उसका क्या है। तो ये थोड़ी इशू आ जाती है उसके साथ। तो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट तुम्हारा वही है, तुम अभी लीड कोड मिल जाओ। लीड कोड में वही अभी जैसे बताया करीब 1800 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट वही तुम इजी से करो स्टार्ट। और देखो मेन चीज़ क्या है, अभी तुम जैसे फर्स्ट ईयर वाले हो तो तुम्हारे पास अभी टाइम है कि तुम बिल्कुल अपना दिमाग लगा, एक एक क्वेश्चन करने बहुत टाइम लग जाता है। अगर तुम थोड़ा टाइम लगाओगे तो 2-3 घंटे भी लग जाते हैं क्वेश्चन करने में। तो तुम लोग अपना एक टाइम फिक्स कर लो। मतलब ये नहीं कि तुम एक ही क्वेश्चन में तुम एक दिन पूरा तुमने बर्बाद कर दिया, तुम्हें कुछ आया नहीं, फिर तुम देख रहे हो। तो इसमें बहुत स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन वही है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे अप्रोच में। जैसे अब हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमारा अभी 2-3 महीने में वही प्लेसमेंट तो अच्छी अच्छी कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑफ कैंपस हमारा। अभी तौसीफ ने बताया कि जैसे ये जो ऑन कैंपस आई है, तो कुछ कंपनीज तो आई है जो अच्छी है, जैसे 12 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज ऐसे आई है। लेकिन ये यहाँ पे वो मेरे को कॉल आ वेट, वो तौसीफ एक बार वेट करना, रुक। Harsh? Harsh is there? Harsh, Rushan? Sir, he is there. He has Yes, gone sir. to take a call. Yes, Harsh sir. has take a call. Yeah, Tauseef. hello. Okay. Yes, Harsh, very good evening to all of you. Harsh, can we conduct some workshop for first year and second year students? Hello, sir. Sure, sir. We can conduct the workshop at a later stage. So we can conduct it for all the 3 years, like first, second, and third. First year, second year, third year. Yes, yes. So, very good evening to all of you. Myself, Dr. Brahm Hajela from MIT School of Engineering Technology, Lucknow. So, I hope all the doubts have been cleared by Rushan, Harsh, and Tauseef. So, there are some benefits of this TSC. Benefits like you will have the opportunity to grow your knowledge of developer technologies. Like we will conduct some workshops and some events, and you can also showcase your prototype, your project, your model, and solutions to all the local community of this local coding community, and also to the industry leaders. Okay, and some other benefits like you can say you can use Google resources to create something which will definitely make some impact on the society. Okay, and I will suggest to go for some traditional language also, like C, C++, because almost all the websites like YouTube, Twitter, and Google, Facebook, they are still working on C++, Java, C. Okay, so I will suggest to go for these. Don't run away from these languages like C stuff or C++ stuff or Java stuff. So I will suggest to go for these traditional language, and then because in Python, definitely you can go for the Python also, but Python and some other languages, scripting languages, that will basically the ready-made libraries are there. So you will not very much aware of what exactly is doing at the system level. Okay, so some system level programming is also important because of the placement point of view also, because Harsh? Yes, sir. Harsh, in placement, have you got any coding like on C or C++ language? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, and any other platform they means what is the requirement for the placement nowadays? Because you are facing the placement interview and placement session test. Yes, sir. So mostly like they ask aptitude questions, and for like coding, so mostly they ask MCQ based questions on your knowledge on C++ or Java. So it's like you can learn any one of them. Okay. So can we conduct some workshops on like basics, because there are so many topics, there are so many hidden areas of your C, C++, Java, and some subjects like your data structure subject is important from the placement point of view. So we can conduct some workshops like workshop on C programs, on C++ programs, and your Java, and also some we can take some topics on data structure, some algorithm subjects, because these are the very important subjects from the placement point of view. So I'm the campus ambassador of Coding Ninja. So over there, the placement questions are given for free. So there is a platform where. Just a second, you don't need coding ninjas to get good at algorithms and data structures. We haven't done anything, but we are okay at it. So if you want, you can go for these paid programs, but it's not necessary to do them. It's free of cost. Okay, okay. Then you can do it, because then that's fine, I think. Okay. So what is the role of the DSC lead here, Rushan? So the DSC lead manages all of the departments that we have at our GDSC. Okay, okay. So that means you can conduct some workshops, some yes, sir. Anything. Web and application development, and some more topics. Yes, sir. We have the full creative freedom to do so from Google itself. Okay. So is there any event recently? Is there any upcoming events that the students can participate, or we can? Yes, sir. Actually, in the next month we have something called Hacktoberfest. So most probably we'll be arranging workshops for that. So it is basically an open source event to promote open source among beginners. Okay, okay, okay. Yes, sir. So open source, is there any platform like GitHub and Git? Yes, sir. So we'll be covering Git and GitHub in the workshops. Okay, okay. Because and situations. Yes, sir. No, sir. I think we should move on to the question answer section. So if someone has any questions, then please, this is the time to tell us. Yeah, we haven't completed our placement thing right now. So Okay, we would like to continue. Okay, so then you can continue with your placement gupshup, and then after that we'll take questions. Harsh? Now you can continue. Harsh is there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Harsh. Now you please continue. Okay. So Nilesh, do you want to add anything here? I guess you have covered most of the things. One thing, lead code is used. Lead code वहाँ पे भी काम आता है जब तुम लोग रेफरल मांगते हो ना, क्योंकि ऑन कैंपस टॉप फैंग कंपनीज नहीं आती हैं यहाँ पे, तो ऑन कैंपस तो आएंगे नहीं। एक सेकंड, इनको ये बता दो कि रेफरल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये बता अच्छा, रेफरल होता है क्या, पहले तुम लोग को ये बता दे। देखो रेफरल होता क्या है, ऑफ कैंपस जब तुम अप्लाई करते हो फैंग कंपनीज में, तो लास्ट ईयर मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, तो अप्रॉक्स जब रिजेक्शन मेल मुझको आया था तो अप्रॉक्स 9,50,000 लोग ने अप्लाई करा था, तो 9 लाख लोगों का टेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो उसमें वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, उन 9 लाख लोगों की जो रिज्यूमे होती हैं उनको एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो उसके थ्रू प्रोसेस करते हैं और उसमें से जो बेस्ट मैचेस होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो उसमें Tier 1 के कॉलेजेस मोस्टली वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे IITs एंड NITs ये सब कुछ, तो हम लोग का चांसेस रिज्यूमे सेलेक्टिंग से तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे काम आता है रेफरल का, तो जो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे कोई बंदा काम कर रहा है और मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उससे कह दूँ कि मुझको रेफर कर दो इस पोस्ट के लिए, ये पोस्ट ओपन है, तो फिर वो क्या कहते हैं, वहाँ पे उनका इंटरनल वो होता है प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे हमको रेफर कर सकते हैं। तो इससे ये हो जाता है हम रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से
नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। तो फिर आता है हम लोग कोडिंग टेस्ट करने का आता है, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये हो जाता है कि हम कंसीडर कर लिए जाते हैं एक तरीके से, वरना हम लोग कंसीडर भी नहीं करे जाते हैं। तो इसलिए रिज्यूमे काम आता है। अब बात ये है कि हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को जानते नहीं है, तो क्या करें, तो यहाँ पे लिंक्डइन बहुत काम आता है। तो अभी से तुम लोग ये शुरू कर दो, क्या कहते हैं, जो भी टॉप कंपनीज हैं जो तुम लोग टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे कनेक्शन बनाना शुरू कर दो। देख लो लिंक्डइन में तुमको बहुत आराम से मिल जाते हैं। और उसके बाद तुमको लीड कोड, जैसे हर्ष ने बताया, लीड कोड, क्योंकि बेसिकली सब कंपनी जो वहाँ पे काम करे सबको लीड कोड के बारे में पता है कि यहाँ किस बंदे ने कितने क्वेश्चन लगाए हैं, तो क्या लेवल होगा उसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने मैंने हर्ष ने अप्रॉक्स 650 समथिंग क्वेश्चन लगा डाले अभी तक। तो हम लोग अभी जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में रेफरल ले लेते हैं। हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट में मिला है, गूगल में मिला है, अमेजन में मिला है, जिस कंपनी में चाहे हम लोग ले सकते हैं रेफरल। तो ये बहुत काम आता है रेफरल का। बाकी तो मोस्टली हर्ष ने कवर कर ही लिया, क्या कहते हैं, सोल्यूशन को आसानी से मिल जाते हो। हर टाइप के क्वेश्चन तुमको जो प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है मिल जाएंगे तुम लोग को। और बस वी हैव कंप्लीटेड 700 क्वेश्चंस। ठीक है। नहीं अभी कोई पूछा ना क्वेश्चन नीचे। अच्छा, अरे देखो 700 करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो माइक्रोसॉफ्ट लेवल लगा कि अगर तुम कंपनी निकाल रहे हो तो तुम्हारा 300 से 500 के आसपास तुम अगर क्वेश्चंस लगा लोगे लीड कोड पे तो बहुत आराम से कर जाएगा। और अगर गूगल और इस लेवल के अगर टारगेट कर रहे हो तब तुमको देखो बेसिकली होता है गूगल के लिए लीड कोड के 3 लेवल होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड, है ना। तो लीड कोड हार्ड के तुम अगर क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर ले रहे हो तो फिर तुम्हारा मतलब गूगल के इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस अभी पॉसिबल होते हैं। और लीड कोड हार्ड के क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करने हैं तो अप्रॉक्स तुमको क्या कहते हैं, अप्रॉक्स 800-900 क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा। अभी हम लोग 150 हार्ड क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को मतलब ये नहीं 100% श्योर है कि लीड कोड हार्ड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तुम लोग अभी तुम लोग के पास टाइम है, हम लोग तो जून से शुरू गए हैं, तुम लोग के पास टाइम है, तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हो। और थर्ड ईयर हम लोग आए थे, ठीक है, तुम लोग को हेडअप दे दें, ये बहुत जरूरी होगा। हाँ, मेन बात यही है, अभी जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पहले के, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। अगर जो अभी भी स्टार्ट करना चाहे तुम आराम से 5-6 मंथ दो, तुम्हें आराम से बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। अगर तुम 5-6 मंथ दोगे तुम्हारे 700 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, मतलब मैंने तो कॉलेज के टाइम से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड था। मतलब मैंने 3 साल में टोटल मिला के सिर्फ 200 क्वेश्चन लगाए होंगे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक। तो हमारा उतना वो नहीं था। जो हमने मेन किया, हमने अगस्त से इसी ईयर के अगस्त, कब से अगस्त से किया है? जून से करा है, जून से किया है। ओके, हाँ, तो हमने फिर जून से करना हमने लगातार, लेकिन जून से हम बिल्कुल, क्योंकि प्लेसमेंट का सीजन आने वाला है अभी, तो अभी ये सब फैन कंपनी जितनी भी आएंगी अभी इनका 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने कहा अभी थर्ड ईयर हेडअप दे देता तुम लोग का जनवरी के टाइम या फिर दिसंबर के टाइम में इंटर्नशिप का आएगा। तो इंटर्नशिप अगर तुम लोग स्कोर कर ले जाओ तो फिर तुम लोग को प्लेसमेंट पाना बहुत आसान हो जाता है। हम लोग इंटर्नशिप के टाइम नहीं ले पाते क्योंकि हम लोग उस टाइम लीड कोड नहीं लगाते थे। हाँ, उस टाइम लेकिन अब हम लोग के पास वही था कि अब हम लोग को फुल टाइम कंप्लीट करना है सीधे। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता, अगर हमने पहले कोडिंग कर दी होती तो हम, जैसे दिसंबर के टाइम हमने रेफरल मांगा था कुछ लोगों से, लेकिन किसी ने हमको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि हमारा कुछ था ही नहीं कि हम उसको दिखाएं कि हमारी अचीवमेंट क्या है। हमने कुछ खास किया नहीं। जीसॉक निकालो, डेवलपमेंट में इतने अच्छे हो जाओ कि तुम जीसॉक होता है गूगल समर ऑफ कोड, वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह सब होता है। अभी ये लोग बता देंगे तुमको थर्ड ईयर वाले। तो अगर वो कर ले जाओ तो बात खत्म। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तुमको अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने तुमको पहले तो कंसिस्टेंटली ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। फिर जीसॉक की एप्लीकेशन आती है, फिर सेलेक्ट हो गए, उसका 6 महीने की इंटर्नशिप होती है बेसिकली वो तुम्हारी। उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद तुमको गूगल में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब कुछ होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो या तो उस लेवल की तुम लोग डेवलपमेंट कर लो या फिर तुम ये करो। लेकिन उस लेवल की डेवलपमेंट भी कर लो, फिर भी कोडिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल आपको सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस में नहीं सेलेक्ट कर देगा, कोडिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो तो मतलब जरूरी है। और हाँ बस हाँ, ये सीरियसली ले लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट जो बनाओगे तो लोगों को बेसिकली रिज्यूम में 2 से 3 प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं। तो एनटीसीसी तब तक तुम लोग के पास 3 तो हो ही जाते हैं। तो एनटीसीसी सीरियसली ले लो, बाकी डेवलपमेंट में होता है करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मेन कोडिंग। हेलो व्हाट सर, कैन यू टेल मी मतलब प्रोजेक्ट मतलब कैसे, मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट? देखो इसमें तुम्हारे बेसिकली कितनी फील्ड्स हो जाती हैं। देखो वेब डेवलपमेंट से हो सकता है, एंड्रॉइड पे हो सकता है, एमएल पे हो सकता है। तुम किसी में भी करो, तो कंपनी ये नहीं देखती तुमने किस फील्ड में प्रोजेक्ट करा। कंपनी ये देखती है
तुमने किस लेवल के प्रोजेक्ट करे, तुमने उनसे क्या सीखा है, और मतलब हाँ तो फिर देखो जैसे हर्ष तुम अपने प्रोजेक्ट बताओ, तुम्हारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, कैसे किस लेवल पे तुमने क्या करे थे? प्रोजेक्ट्स या तुम्हारे मतलब जिस भी फील्ड में तुम्हें नॉलेज है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें तुम हल्का सा कुछ अच्छा बना दो, मतलब जैसे मैंने तो So may I say something? Like the project should be like this. Like they should solve a real world problem, and those projects will be given high value, and people can talk about those projects in their interviews and all. हाँ ये सही पॉइंट बताया इसने कि आपने किस तरीके, ये नहीं रिपीटेड प्रोजेक्ट ना हो कि जो सभी बनाया आपने वही बना दिया, थोड़ा भी आपने कुछ थोड़ा क्रिएट और बेसिकली कुछ ठीक ठाक बना लेना, मतलब ये रहे कि बस तुम ट्यूटोरियल उठाओ कॉपी कर लो, ऐसा ना हो, थोड़ा इंट्यूटिव हो। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी कोर्स का उठा के पूरा कॉपी कर दिया बस, वो तो फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर तुम बोल दो कि मैंने यूडमी से ये सीख के बना दिया, तो इंटरव्यू आपको खुद ही निकाल देगा वहीं पे। ये ना सर्टिफिकेट ना भागना कभी, अगर तुमने सीखनी है कोई वैल्यू नहीं है सर्टिफिकेट की। प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू तुम्हारे चढ़ते हैं, सर्टिफिकेट्स हम लोग ने तक ऑब्जर्व कर लिया। मतलब सर्टिफिकेट मैंने एक बार किसी इंटरव्यू को बताया तो उसने उल्टा मुझसे और बोलने लगा, अच्छा ये मतलब सर्टिफिकेट के उत्ते कोई वैल्यू नहीं है, आपको मेन स्किल्स क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और हम मतलब मेन ये कहूँगा कि जो भी थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में उनके पास अच्छा खासा टाइम है कि तुम कोडिंग सीख के तुम मतलब माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप, ऊबर में इंटर्नशिप, गूगल में, ये क्या होता है ना कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में इंटर्न है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आसान होता है कि फुल टाइम के उससे, क्योंकि इंटर्नशिप में वो आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, आप कुछ टाइम उन पे काम कर रहे तो वहाँ उस टाइम में आपको जज कर सकते हैं आपका कैसा काम है। तो इंटर्नशिप अगर आपकी किसी कंपनी में लग गई जैसे माइक्रोसॉफ्ट में, तो फुल टाइम करना कंपैरेटिवली आसान होता है, या कि आप मैं जैसे अभी हम स्टार्टिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सीधे फुल टाइम रोल के लिए कंसिडर होना, तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वही अगर आप पहले से कोडिंग कर यस So that part is over now. The internships are out, and after that, I don't think so. Again, the internships will be coming. ना अभी टाइम है, अभी तो कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर के टाइम फ्रैंक्स निकालते हैं इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा। अभी भी तुम लोग के पास है, अभी क्या कहते हैं ट्विटर की इंटर्नशिप का आज ही आया, अप्लाई कर सकते हो 2020। There were internships of Google and Microsoft also. हाँ तो अभी आ रही हैं, अभी टाइम है तुम लोग के पास, यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months फॉर प्रिपेयर। जनवरी में आती है कि नहीं? जनवरी में आती हैं लास्ट ईयर। Actually, I know some Googlers and all, so I can. गूगल की इंटर्नशिप जा चुकी है, लेकिन बस गूगल नहीं है, बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं अभी क्लिप उन पे टारगेट कर लो, एक बार इंटर्नशिप रहेगी तो तुमको गूगल कंसीडर करेगा इंटरव्यू के लिए। हाँ हरीश तुम कुछ पूछ रहे थे? हाँ नहीं हरीश हेलो अरे लाइक आई वाज नॉट आस्किंग, मतलब मैं बता रहा था लाइक सर्टिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, जितना मेरे को नॉलेज है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन थर्ड ईयर, आई एम लाइक आई नो तौसीफ रुशान, सो हाय एवरीवन। जितना मेरे को सर्टिफिकेशंस का नॉलेज है, जितना मैंने देखा है, देखो लाइक सबके लिए जो पूछ रहे हैं, फ्रेशर्स के लिए सर्टिफिकेशंस तुम 20 कर लो 30 कर लो ठीक है, बट इसका हमेशा ध्यान रखना उसकी वैल्यू क्या है, वो मतलब कौन सी लाइक किधर से कौन सा सोर्स है। लाइक अगर ओरेकल के अभी फ्री कोर्सेज आए थे ठीक है, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर, उधर का सर्टिफिकेशन है, उसकी वैल्यू है बिल्कुल है ठीक है। कोर्सेरा के कोर्सेज होते हैं, उनका यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्सेज होते हैं, या उसकी वैल्यू है कुछ हद तक। तो डिपेंड करता है तुम किस चीज को सीख कर रहे हो। मान लो अगर तुम जस्ट फॉर एन इंस्टेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा रहे हो, तो तुम्हारे पास लिनक्स के सर्टिफिकेशन होने चाहिए, और भी बहुत सारे होने चाहिए, नेटवर्किंग का होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है वैल्यू की जहाँ तक बात है, लाइक पूछ रहे थे ना। सो ये नहीं है कि तुम कैगल से कोई कोर्स कर लो। I want to add on to this, like you can have certifications, but remember this, that they will be asking how the thing in that certification, that what you did to get that certification, what knowledge you gained. They will take your interview over it. So do not add all the certifications in their in your resume, so that the interviewer questions you for everything. Also to make it clear, Udemy के सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। लाइक अगर तुमने 10 कोर्सेज करे तो उसको मत डालना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हाँ मतलब होते हैं कोर्सेज जिनकी वैल्यू है, लेकिन ऐसे कोर्सेज बहुत रेयर है। मतलब कोई भी कोर्स है जिसको तुम जानते हो कि अचीव करना बहुत आसान नहीं है कि सभी लोग के पास वो है,
तो फिर उसकी कोई वैल्यू है, वरना मोस्टली जैसे यूडमी हो गया, इसके सर्टिफिकेट तुम 700 रुपीज़ पे करो और तुम मिल गया तुमको सर्टिफिकेट, तो इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। मेन पॉइंट ये था। और हाँ, एक और चीज, इंटर्नशिप अगर तुम लोग को अभी नहीं मिल रहा ढंग की कंपनी में, तो एक एंजल लिस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे सारे स्टार्टअप्स आते हैं इंटर्नशिप के हायर करने, तो वहाँ पे जाकर ट्राई कर लेना, वहाँ पे बहुत आराम से इंटर्नशिप। इंटर्नशाला से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी वेबसाइट है एंजल लिस्ट, उसमें मतलब बहुत, वहाँ पे इंटर्नशाला भी ट्राई कर लेना, लेकिन एंजल लिस्ट में मतलब काफी सही सक्सेस। एंजल लिस्ट में अच्छे लेवल की कंपनीज आती हैं। एंजल लिस्ट अभी ज्यादा को पता नहीं है, मतलब इंटर्नशाला मैक्सिमम को पता है, लेकिन एंजल लिस्ट थोड़ा वो है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। और लेकिन देखो, अपना कोई एक टेक स्टैक पकड़ लो, या तो वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट में अलग अलग स्टैक्स होते हैं, मर्न स्टैक, ये सब कुछ होता है, वो तुम अब लोग अभी जब आगे बढ़ोगे खुद सीख जाओगे, या फिर ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, या फिर मशीन लर्निंग सीख सकते हो, या फिर जो जिसमें इंटरेस्ट हो। I think so. Like the students of first year can do web development from the very first year of their college. हम लोग ये सजेस्ट करेंगे। Yeah, they can use the Udemy courses and all, and they can build their own projects, and they can build some projects which they see, they see the real world problems around. On the basis of that, they can build some projects so that we can show it to in our DSC, and we can show it to the industry people so that it has a add-on to their resume. I guess SCA क्लब की अभी वेबसाइट भी नहीं है ना, तो you can create a website for that. एक सेकंड, सब लोग म्यूट कर लो। एक पॉइंट और ऐड करने का है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा ही नहीं है कि मतलब फैंग भी सिर्फ तुमको अच्छी जॉब्स देती है, बहुत सारी स्टार्टअप्स भी तुम्हें अच्छी जॉब देती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेड डंजो सर्च करोगे तुम लोग, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बहुत सारी होती हैं जो तुमको अच्छे सैलरीज देती हैं इन फैंग कंपनी से भी, लेकिन ये है कि वो लोग तुम्हारा डेवलपमेंट प्रोफाइल बहुत अच्छे से देखती हैं, तो अगर उनके लिए तुम्हें जानना है तो तुमको अपने प्रोजेक्ट काफी अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब काफी अच्छे लेवल के, प्लस तुमको उनके लिए भी रेफरल की जरूरत पड़ सकती है। और क्या कहते हैं, वहां पे भी तुमसे कुछ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस लीड कोड के वहां भी तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर तुमको ऐसी स्टार्टअप में जाना है तो ये मत सोचना कि सिर्फ डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत लोग तुमको यूट्यूब पे बताएंगे स्टार्टअप में सिर्फ डेवलपमेंट से काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी स्टार्टअप्स हैं, जैसे मैंने बताया क्रेड डंजो, ये तुमसे इंटरमीडिएट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, ठीक है। तो और रेफरल इनके लिए भी चाहिए, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है, इन कंपनीज में चाहिए हो सकता है। ये था, ये एक देख लेना तुम लोग, मतलब ये। और GSOC में हाँ ये सोच के मत जाना कि तुमको गूगल में इंटरव्यू मिलेगा, 2019 से उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब तुम अगर GSOC क्लियर कर रहे हो तो इंटरव्यू मिलना जरूरी नहीं है गूगल में। हाँ हाँ, वही मतलब वहाँ से फैंग ही नहीं है पूरा, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसमें मतलब कोडिंग आप बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको डेवलपमेंट, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा होना है, क्योंकि ये सब कंपनीज थोड़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका है नहीं, तो अगर आप बहुत एक्सेप्शनल होंगे तभी इसमें आपको मिलेगा। और फिर अगर ये आपका केस है तो उसमें बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं भी करेंगे, लेकिन अब मीडियम तक का तो होना चाहिए आपका लेवल। देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों बस प्रैक्टिस बना लो, डेली के 1 से 2 क्वेश्चन कर लिया करो लीड कोड के बस। और थर्ड ईयर वाले अपना ग्राइंड पे लग जाओ, क्योंकि तुम लोग के पास टाइम नहीं बचा, बस बात खत्म। बेसिकली एक समय करना। मेन बात ये है ना, तुम लोग जो फर्स्ट ईयर वाले उनको इतना अच्छा एडवांटेज है, मतलब अभी कोरोना की वजह से तुम्हारे पास पूरा दिन खाली है। मतलब हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर, पता नहीं सेकेंड के आधे साल तक हमारे पास बिल्कुल एक दिन में मुश्किल से 1 घंटा हमारे पास होता था, अगर हम कुछ पढ़ना चाहे, कुछ करे, कुछ टाइम ही, पूरा कॉलेज जाओ फिर घर आओ। Sir, the same situation is right now also, because we are given so many assignments. सबमिट क्यों करती हो? सबमिट ही मत करो। अरे रुको रुक जाओ यार, थोड़ा little less radical please. Sir has gone. अच्छा सर गए? हाँ अच्छा देख लो। अरे चलेगा, मैंने देखा था, लेकिन ना सबमिट किया करो। हम लोगों ने पता नहीं 1 हफ्ते पुराने 2 हफ्ते पुराने। ठीक है भाई, तुम अपना मत बताओ, तुम लोगों ने भी ये सब ना बताओ क्या ही है। हाँ ये सब सीक्रेट चीजें होती है, बताने। हाँ तो देखो वही बहुत टाइम है, तुम लोग हमारा फर्स्ट सेकंड ईयर में हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, तो कुछ करने की सोच नहीं सकते थे।
मेन हमारा असाइनमेंट पूरा बनाने को कौन कह रहा है? कॉपी पेस्ट करो ना, अपने डिवाइड कर लो, एक पेज तुम करो, एक पेज दूसरा करो, तो बाकी सारे पेजेस कंबाइन हम कर लो। लोगों से वो भी नहीं होता है। हाथ से लिखवाते हैं। हाँ तो हाथ से एक पेज तुम लिखो, एक पेज तुम्हारा ग्रुप का दूसरा बंदा लिखे। हम लोग मर्ज कर लिए थे, हम लोग ने 5 लोगों ने लिखा था और आपस में मर्ज कर दिया था एक दूसरे का असाइनमेंट। वेरी नाइस। तो ये करा करो। और अभी तुम लोग के पास टाइम है, अभी शुरू कर दो, क्योंकि कॉलेज के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। देखो तुम्हारे सीजी ये सब हाँ कंफर्म कर लो भैया, देख लो। देखो अगर तुम लोग देख लो, पहले चेक करो एक बार, रुको भाई यार तुम बोलो। हाँ देखो अगर एमिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको 11, 12, 13, 14 लाख का कंपनी दे दे, तो एक्सपेक्टेशन पॉसिबल है नहीं। देखो पॉसिबल है लेकिन बहुत रेयर है। मतलब अगर तुम नोएडा के होते तब तुम कह सकते हैं ठीक है मिल जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ तुम लोग अभी हेडसअप दे देते हैं। हुआ क्या है, एमिटी यूनिवर्सिटी की जो मैं बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। अरे ठीक है सो बता चुके हैं, करने दो। क्या करेंगे? ये आई थी, सिर्फ नोएडा के लिए आई थी, बता चुका हूँ। हाँ बस एक ही कंपनी आई थी, वो पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी के लिए आई, किसके लिए आई। वो टेस्ट सबका लिया, सेलेक्ट किसी को किया ही नहीं, वो रैंडमली किसी दो को उठा लिया, जबकि सबका अच्छा गया था बिल्कुल। पता नहीं किस बेसिस में वो उठा गया। देखो एमिटी यूनिवर्सिटी, यहाँ एमिटी लखनऊ में बेसिकली तुम लोग को 6-7 तक की कंपनी है, बहुत आराम से अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाएंगी, तुम लोग आराम से निकाल लोगे। और एमिटी में अगर तुमको निकालना है तो फिर तुम लोग क्या कहते हैं, बस 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और ऊप्स। ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो और थोड़ी सी कोडिंग कर ले जाओगे, तुम लोग निकाल ले जाओगे इंटरव्यू कोई भी। हम लोग बस इंट्रोडक्शन देते थे, हम लोग निकल जाता था। हम लोग बता देते इतने क्वेश्चन करे, इतनी रैंक है हम लोग इंटरनेशनल, हम लोग इंटरव्यू निकल जा रहे थे। तो बस उतना कर लो तो एमिटी पे निकल 6-7 लाख का तुम्हें कुछ एफर्ट्स की जरूरत नहीं। अगर कोई खुश है भाई 6 लाख की लग गई मेरी सेट है, तो तुम भाई मत पढ़ो फिर, अगर तुमको ऐसा है। लेकिन अगर तुम अच्छा चाहते हो तो तुमको ऑफ कैंपस मेनली ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि एमिटी में तो मुश्किल। नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ऊप्स और क्या सर एमिटी 6-7 लाख देती है आराम से, अच्छा पहले जाता है। अभी इस साल तो ऐसे ही केस है, इस साल मतलब बहुत अभी तक 6 लाख की। एक एमटीएक्स ग्रुप ने हम लोग का फॉर्म भरवाया था, वो 14 लाख का पैकेज दे रही थी, लेकिन उसका कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। अभी हम लोग को कुछ अच्छे खासा टाइम हो गया उसका फॉर्म भरे, बहुत कंपनीज है ऐसी। जस्ट आज एक और फॉर्म आया बस, लेकिन वो ओनली फॉर गर्ल्स है, 22 लाख का उसका पैकेज है, वो एक आया। हाँ लेकिन फिर वो ये इशू भी बहुत आएगा। मान के चलो 7 लाख दबती कितनी सारी कंपनी, बहुत सारी हमारे नहीं देखो हमारे टाइम में अभी करीब कितनी 6-7 तुम आराम से आ गई ना, शायद 6-7 तो आई गई है। 6-7 से बहुत ज्यादा आई है। नहीं फिर वो 4-5 लाख की है, 4-5 लाख की ना, 6-7 लाख की करीब। हाँ 5-6 ऐसी आ गई। ये इस साल का है, लेकिन रिजर्व कर लो तो बहुत आराम से 6-7 की निकाल ले जाओगे। 6-7 में कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम मतलब आराम से निकालोगे 6-7, कोई बड़ी बात नहीं है भाई यहाँ से अगर तुम निकाल रहे। और अगर ऑनलाइन आ रहे हो तो फिर नहीं भी रिजर्व करते हो निकाल ले जाओगे क्योंकि बहुत छापा। मेन इशू ये है ना कि पैंडेमिक की वजह से जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो इनमें चीटिंग भर के हो रही है। तो क्या हुआ, जो कंपनीज है उनको अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि अगर तुम सेम डिफिकल्टी करोगे तो आराम से कोई भी निकाल लेगा आप ग्रुप में छाप के। तो यही सब अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो टेस्ट होंगे, गूगल के, इन सब का डिफिकल्टी पहले थोड़ा आसान था, मतलब डिकोड मीडियम, लेकिन अभी मैंने देखा हुआ है दोस्तों के बहुत डिफिकल्टी टफ हो गई है इस बार। तो ये सब अभी इशू है पैंडेमिक का। पता नहीं जब तक तुम लोग 4th ईयर में आओगे तब तक क्या केस है, लेकिन अभी तो यही सीन हो रहा है। सर अभी डेवलपमेंट पे फोकस ना करें? नहीं डेवलपमेंट करो भाई, रुको मत, डेवलपमेंट करो, लेकिन बस फर्स्ट ईयर आई थिंक सो, लाइक फर्स्ट ईयर शुड स्टार्ट विद डेवलपमेंट आल्सो एंड कोडिंग आल्सो। हेलो तुम फर्स्ट ईयर में हो ना? नहीं रहती है, लेकिन हेलो एक बेसिक अपना हैकर अर्थ वगैरह करो, लीड कोड भी ना कूदना फर्स्ट ईयर, या फिर डीएसए पहले पढ़ लेना। डीएसए थर्ड ईयर से पढ़ना। क्या हुआ? जिक्स कैसा है लर्न करने के लिए? हाँ अच्छा है वो, अच्छा है। हाँ वो एज ए रेफरेंस सही है, लेकिन वो बहुत ऑर्डर्ड वे में नहीं है। तो तुमको अगर कुछ चीज जाननी है तो जीएफजी पे जाके पढ़ लो, वो सही है। लेकिन अगर जीएफजी को तुम चाहते हो कि मैं पूरा जीएफजी पढ़ लूं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो अगर तुमको कोई चीज देखनी है तो जीएफजी पे जाओ। कोई YouTube के चैनल्स होंगे ना टॉपिक वाइज जिनका कंटेंट होगा। अभी हमने पता नहीं कब पढ़ा था, मैं याद नहीं है सब क्या YouTube नाम है। देखो एक कोडिंग चैनल है, मुझको याद है, कोडिंग माई कोडिंग स्कूल ऐसे करके कुछ है, उसकी एक प्लेलिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स की। फर्स्ट ईयर उसको देख लो, तुम लोगों को बेसिक आइडिया लग जाएगा, तब तुम लीड कोड कर सकते हो। लिंक सेंटर क्या हुआ? हम अभी वो लिख दे यहाँ पे, माई कोडिंग स्कूल नाम लिख दो चैट। रुको मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ, तब तक तुम मान आगे देखो। हाँ अभी मेन तुम अभी लिंक विंक का तुम उतना टेंशन ना करो। अभी तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में तुम आराम से वो करो ना, पूरा नेट छान मारो कि कहाँ पे क्या रिसोर्सेस है, कैसे क्या। तुम जितना खुद से ढूंढोगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा आइडिया लगेगा तुम क्या तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है।
तो देखो हम लोग अलग अलग इसलिए जानते हैं क्योंकि हम लोग खुद पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको सीनियर से कुछ नहीं बताएगा, तुमको हम बता के दे भी देंगे लेकिन तुमको फिर सीखना ढूंढना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ा खुद से ढूंढ लो, उसकी कोई टाइम अभी बहुत टाइम है तो भैया सारे इसको आप उसमें डाल दें क्लास ग्रुप में। कौन सा ग्रुप? अरे अपनी क्लास ग्रुप डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अच्छा SCS, हाँ ठीक, उसमें एडेड तो है मेरे ख्याल से, ये लोग नहीं है सर डिस्कॉर्ड चैनल ऑफ नहीं शायद इसका नया डिस्कॉर्ड लिंक मेरे ख्याल से उसमें मैसेज में था, उसमें नीचे ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। अरे एक नया डिस्कॉर्ड चैनल लोगों ने बनाया, उसमें ऐड डाल देना। चलो देख लेंगे बाद में। I will be sharing the link. I will be sharing the links for the Discord. In a short time. रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं, रिसोर्सेज तो तुम चलो ढूंढ लोगे, उसकी दिक्कत नहीं हो। देखो अगर रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो एक दिन की हम लोग एक जगह से इकट्ठा कर देंगे, तुम लोग को भेज देंगे, ठीक? रिसोर्सेज की टेंशन ना लो। बाकी देखो फर्स्ट और सेकंड ईयर प्रैक्टिस करना शुरू करो डीएसए की, और बहुत टाइम है भाई तुम्हारे पास। एक इंसान बोलो समझ नहीं आता। कोई सर अगर हम लोगों को कोई क्वेरी या क्वेश्चन होएगा तो आप हेल्प कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, बस लिंक शेयर कर दो, बता दो हम लोग। ओके हाँ मेन अभी हमारे प्लेसमेंट है तो बहुत टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख। अगर कोडिंग क्वेश्चन है तो हम कोडिंग कर लेंगे तुरंत। कोडिंग। हाँ अच्छा सुनो, अगर तुम लोग को कोडिंग करनी है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वे होता है पेयर प्रोग्रामिंग करना, मतलब अपना एक पार्टनर ले लो और उसके साथ कोडिंग करो। मैं और हर्ष एक साथ करते हैं तो ये रहता है। जैसे तो देखो वही लगा तो मैं उसको बताता हूँ ये वाला कैसे करोगे, ये डिस्कस कर लो और फिर वही दूसरा। हाँ ये चीज बहुत एफिशिएंट रहा, मतलब पहले तो मैं अकेले करता था, ये कभी अपना संबंध या करता था नहीं करता था, तो हम लोग कैसे, लेकिन हमने ये जनवरी जून से हमने कहा कि चलो साथ में ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी कंपनीज आने वाली है। तो उस टाइम से अभी तक आज डेट तक हम लोग दिन में करीब आराम से 7-8 घंटा तो करते थे मिनिमम, मतलब 7-8 घंटे, और एक दूसरे से हम बात करते, तुमने क्या किया, ये क्या डिस्कस करते थे। आज में हम लीड कोड के कॉन्टेस्ट देते थे, तो वही लीड कोड के कॉन्टेस्ट, हाँ लीड कोड के कॉन्टेस्ट भी दिया करो। मतलब अभी तो तुम दोगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सीखना है। हाँ लेकिन जब तुम्हारे मतलब 200-300 क्वेश्चन ऐसे होने लगे तो मतलब थोड़ा लीड कोड कॉन्टेस्ट भी देख सकते हो। लीड कोड तो मतलब कॉन्टेस्ट, हाँ बताओ सर। मोस्टली सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स के होते थे C++ में मिलते थे, तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है, लैंग्वेज तुम्हें सब में मिल जाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो पाइथन लीड कोड में हर एक लीड कोड में जावा, C++ और पाइथन तीनों के बहुत आराम से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के भी कभी-कभी मिल जाते हैं, गो के भी कभी-कभी मिल जाते हैं, लेकिन वो सब वो छोड़ दो भाई, वो सब कोई फायदा नहीं है। वो इन तीनों से कोई एक लैंग्वेज समझ चूज कर लो। पहले तो लैंग्वेज आई थिंक सो जावा और C++ में जावा जो है वो ज्यादा, मतलब जावा में आपको जो है वो नहीं करना पड़ता, लाइक स्ट्रिंग होती है उसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं हम लोग। में वो कैरेक्टर हो जाती है, C में भी स्ट्रिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं। अरे ठीक है, अरे में बन जाती है। देखो यहाँ पे चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं देखो तीनों लैंग्वेज से बताता हूँ। देखो C++, जावा, पाइथन का ये है, C++ सबसे तेज है, ठीक। C++ से 5 गुना स्लो जावा है करीब, समझ लो, और 5 गुना पता नहीं कितना, ऐसी कुछ है शायद, जो भी है, तो 5 गुना से जावा है, और उसका करीब 10 गुना स्लो पाइथन है, ऐसा कुछ समझ लो करीब। मतलब पाइथन है उससे तेज जावा है, सबसे तेज C++ है। अब लेकिन देखो दिक्कत क्या है, जावा के साथ, जावा है तो अगर तुम मतलब एक ही लैंग्वेज तुम्हें भी सीखनी है तो सबसे बेस्ट जावा ही रहेगी। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता हो, तुम्हें सीखना है कुछ, तो जावा में मतलब कंपनीज में यूज होता है। मैक्सिमम कंपनीज की हायरिंग जावा के बिना तो कोई हायरिंग होती ही नहीं, मतलब तुम्हें जावा आता है तो तुम सब निकाल दोगे, तो बेस्ट जावा है। लेकिन जावा के साथ लेकिन ये हाँ, तो लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जावा के साथ ये है कि थोड़ा सा लंबा कोड लिखना पड़ता है। मतलब जैसे अब मैं तो पाइथन वाला, तो मेरे को इतने पाइथन में तुम्हें हर चीज़ का इतना छोटे में तुम लिख लोगे ना, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है जो C++ में होगा लेकिन पाइथन में नहीं है, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है। तो पाइथन में मतलब इतने तुम छोटे में इतने अच्छे तरीके से, इतना एलिगेंट कोड होगा, इतना दिखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल स्यूडो कोड की तरह तुम मतलब बहुत एफिशिएंटली वो तुम कॉन्टेस्ट देते हैं, तो जितनी देर में कोड करते हो तो वो सबमिट कर चुका होता है। पाइथन में ये डिफरेंस हो जाता है बस। हाँ पाइथन में तुम किसी भी चीज़ को बिल्कुल इतने आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है। लेकिन पाइथन से ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुछ ऐसा, तो पाइथन से कभी होता है कुछ कोडिंग को मतलब कंपनियां बस C++ और जावा मांगती हैं। मेन बात है एक लैंग्वेज, तो कभी तुम एक लैंग्वेज पे भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो ये मत सोचो कि मैं एक पाइथन सीख लूंगा परफेक्ट कर लूंगा, फिर मैं या जावा ही सीख लूंगा, जावा ही परफेक्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें सीखना है तो तुम 2 तो मिनिमम सीखो। एक कंपनी भी कहेगी भाई तुमको एक ही आती है क्या, ऐसा नहीं होता। अरे यार देखो, लैंग्वेज सीखना तुम्हारा एक वीकेंड का काम है, तुम लोग आराम से सीख सकते हो अगर कोई एक आती है बेसिकली। हाँ मेन बात यही है, एक आ गई ना, जैसे पाइथन मेरे को आती, मैंने जावा देखी, जावा मतलब मैं एक ही दिन मेरे को अच्छी खासी समझ में आ गया था जावा क्या है। मतलब मेन जो कोडिंग वाली जावा है वो नहीं कि मैं एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, लेकिन जो कोडिंग में यूज होती है
वो वाला मेन आपको समझ में आ जाएगा। तो बेस्ट अगर तुमको वो चाहिए कि तुम बिल्कुल छोटे में बिल्कुल एलिगेंट कोड है, अगर तुम थोड़ा ट्राई करोगे पाइथन तो इतने अच्छे कोड होते हैं, 1 लाइनर में तुम बिल्कुल लिख दोगे कोड, बाकी सब में तुम्हें पता नहीं 5-10 लाइन लिखो, उसमें 1 लाइन करेंगे किसी प्रोग्राम को तो C++ हम लोगों की पाइथन से तेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर वो जल्दी सारा कोड सॉल्व करेगी, तो ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करता होगा? नहीं, वो ऑनलाइन जो होते हैं वो उस हिसाब से टाइम अलॉट करती है। C++ के कोड को शायद 40 से बनते हैं, तो पाइथन के कोड को सब ज्यादा टाइम अलॉट होगा, ऐसा हो जाता है। पर ये नहीं, पाइथन स्लो है जब तुम उसको 1 लाख 1 करोड़ नंबर दे दोगे, जब तुम 10 नंबर दोगे तो C++ और पाइथन बराबर है, 10 नंबर में वो डिफरेंस नहीं होगा, वो जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स में होगा डिफरेंस। तो लीड कोड में तो तुम्हें कोई कभी इशू आएगी ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ये होगा कि पाइथन चल गया है लेकिन C++ नहीं चल रहा है, जावा नहीं चल रहा है, क्योंकि पाइथन में देखो स्ट्रिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, और पाइथन पे इतने सारे शॉर्ट हैंड होते हैं, जो पाइथन है वो बैक एंड में उसका बहुत सारी चीज़ें C++ में इम्प्लीमेंट है, तो वो भी उसमें स्पीड अच्छी है। देखो अभी तुम लोग इसमें ना लड़ो कि पाइथन लेना जावा लेना, तुम लोग बस बेसिकली कोई एक लैंग्वेज पर एक्सपेरिमेंट कर लो यार, इतना कुछ वो थोड़ी ना है कि तुम अभी डेडिकेट हो सबसे पहले उस लैंग्वेज को सीख लेना कि कैसे लूप वगैरह क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लिए बता रहे हैं। उतना करने के बाद हर एक लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी होती है, C++ में STL होता है, जावा में शायद कलेक्शंस होता है ना, हाँ कलेक्शंस फ्रेमवर्क होता है, हाँ। तो ऐसे ये अलग अलग ये होता है, तो उसमें होता है क्या, तुमको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से मतलब बनाए हुए होते हैं। तो जैसे भैया एक क्वेश्चन कि जो है एडवांस जावा पूछी जाएगी या कोर जावा पूछी जाएगी? कोर पूछी जाती है, एडवांस मोस्टली नहीं पूछते। लाइक एडवांस में JDBC होता है ना, एडवांस में JDBC हाँ एडवांस में होता है वो, मतलब देखो तुमसे कोई बूट स्प्रिंग बूट या फिर ऐसे कुछ नहीं पूछेगा, JDBC पूछ सकते हैं क्योंकि ये सब तो वो पूछेंगे ना, अगर तुम किसी स्टार्टअप में जा रहे हो तुम्हें जावा का ही काम है तो कोडिंग नहीं पूछ रहे तो वो ये सब पूछेंगे। देखो अगर तुमने जावा नहीं पूछेंगे तो ये हाँ शायद पूछा जा सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जावा नहीं करता। हाँ जावा तो बहुत वास्ट है, उसमें तुमसे कुछ भी पूछ देंगे, जावा तो बहुत बढ़िया। हाँ तो बेसिकली देखो तुम लोग सबसे पहले डेटा फर्स्ट ईयर के लिए बता रहे हैं, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख लो, और कोई सबसे पहले कोडिंग लैंग्वेज सीख लेना, C++, जावा जो भी सीखनी है, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख लो। वो अभी कोडिंग सर कोडिंग निंजास के कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ तुम शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना इन लोग को। ओके तुम सब एक्सप्लोर करो, कोई वो ना करो, देख लो 5-6 बार देखना ही पड़ेगा, तभी तुम लोग को आइडिया लगेगा क्या क्या है। तो आप भी देख लीजिए कोडिंग निंजास के कोर्सेज, लाइक आप जाके देख लीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो फिर बताइए कि हम सब लोग जो है फॉलो करें उस कंटेंट को। हम लोग के पास टाइम नहीं है वो देखने का, हम देख के क्या करेंगे, तो समझना तुमको है ना, तुम ट्राई करो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो एक सेकंड, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना, इतनी एक्सपीरियंस है। हाँ एक सेकंड, मैं डिस्कॉर्ड और ऑफिशियल मेंबर बनने की लिंक शेयर कर देता हूँ, देन यू कैन ऑल कैरी ऑन विद योर टॉक्स। हाँ पहले कर लो शायद, चलो। क्या बोला अभी? अजीब। तो ये लिंक है जिससे तुम लोग ऑफिशियल मेंबर्स बन सकते हो DDSC के, और ये हम लोग की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की लिंक है। हम लोग की मेन कम्युनिटी बिल्डिंग यही होती है। ओके नाउ यू कैन कैरी ऑन। कहाँ पे थे, भूल गए। अरे नहीं देखो, जो रिसोर्सेस है, अगर मैंने वो तुम्हारी कोडिंग निंजास की वीडियोस देख ली तो हमको पता ही नहीं चलेगी कि अच्छी वीडियोस है खराब है, क्योंकि हमको तो पहले से ही आता है ना, तो हमको क्या पता कि इतना अच्छा समझाया कि नहीं। तुम लोग ट्राई करो कि तुम्हें कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं। हर एक को अलग अलग टीचर समझ में आता है, तो तुम लोग अपना एक्सप्लोर करो, हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ से देख सकते हो, हम लोग ने कहाँ से देखा था, ठीक। एक सेकंड, वो एक यूट्यूबर है, क्या नाम है, के से नाम है कुछ, कुणाल कुशवाहा, उसका जो एक कुशवाहा, अरे नहीं उसकी एक DSC का वो है, क्या नाम है, लिस्ट है, वो अच्छी है, वो देख सकते हो तुम लोग अगर तुम्हें। अरे यार देखो तुम लोग को हम लोग जितने भी रिसोर्सेज हम शेयर कर देंगे, तुम लोग देख लेना, जो अच्छा लगे देख लेना, ठीक। और रिसोर्सेज भाई खुद कलेक्ट कर सकते हैं, रिसोर्स कलेक्ट करने की कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 2-3 घंटे में ये उतना अच्छा नहीं है कोड विद हैरी। देखो हम टॉपिक्स बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है, फिर तुम लोग ढूंढ लेना। सबसे पहले कोड विद हैरी है तो सिर्फ एक सेकंड, हाँ सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेना, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम देख लेना, ठीक। तो कहीं से भी देखना, तुम लोग की मर्जी, हम लोग की क्या है, हम लोग के YouTube चैनल में।
और उसके बाद तुम लोग फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पहले से इंप्लीमेंटेड होते हैं, जैसे स्टैक्स है, क्यूज है, हैश टेबल है, ये सब पहले से उसमें इंप्लीमेंटेड होगी। C++ में STL होता है, जावा में कलेक्शन होता है, पाइथन में क्या होता है? पाइथन में अरे वही इसमें भी कलेक्शंस होता है, फंक्शंस होता है, नमपाई, वो सब तो फिर अलग हो गया। मशीन pandas नहीं वो सब मशीन लर्निंग के लिए, वो मशीन लर्निंग के लिए। कोडिंग में ये सब नहीं हो सकता। कोडिंग में भी फंक्शंस हो गया, कलेक्शंस हो गया। हाँ, तो तुम लोग बेसिकली सर्च कर लेना, जैसे तुम लोग अब इतना आ गया ना, तुम हैश टेबल यूज करते हो, उसके बाद फिर लीड कोड में जाना। लीड कोड में STL से यूज होता है मोस्टली, पहले क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में STL होता है। तो फिर उसके बाद लीड कोड लगाना शुरू करना, जो फर्स्ट ईयर है। और थर्ड ईयर लग जाओ काम पे, तुम लोग लीड कोड लगाना शुरू कर दो, मरो जो करना है करो, करना शुरू कर दो, लेकिन अब टाइम नहीं है तुम लोग के पास, इतना समझ लो। हाँ, तुम लोग अभी से करोगे तो आराम से तुम लोग तो भाई बहुत खतरनाक निकाल दोगे, क्योंकि हम लोग को हिस्सा नहीं मिला था, हम लोग की धज्जी उड़ी इस टाइम अच्छे से। हाँ। आपका पैकेज कितने का लगा पहले ये बताइए। ये सब ना पूछा अभी। तो अभी बताया तो जो कंपनी आई है उसी में तो लगा, जो नहीं है उसमें कहां अभी बेस्ट कंपनी आई है उसमें लगा है बस, उसके अलावा नहीं अभी कितने का लगा है ये पूछ रहे हैं करेंटली। अच्छी बात नहीं होती है पूछना। पर्सनली पूछ लूंगी। ऑफ कैंपस अभी हम लोग अभी ऑफ कैंपस कोई आई नहीं ना, अभी ऑफ कैंपस अभी कुछ 1-2 महीने में स्टार्ट होगा। तो अप्लाई करेंगे। वही मेन जैसे कुछ कंपनीज होती है कोऑर्डिनेशन लेवल की, वो तो बिल्कुल अलग लेवल है। अगर उसमें तुम्हें करना है फिर तो वो तो बिल्कुल ही टॉप लेवल का। उसमें अगर तुम 2 साल कोडिंग करोगे कायदे की, तब तो उनका पैकेज होता है कितना, 36 लाख 45 लाख ऐसा करके। 36 लाख से 36 उनका 36 में से तो ऐसे 30 तो बेस होता है, मतलब तुम सोचो तो। हाँ, तो वो तो बिल्कुल भगवान लेवल कंपनीज है। देखो ये सब बातें करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो सब बातें ना ही करो जबरदस्ती। अरे ठीक है भाई, मोटिवेशन आएगा भाई, जिसका मन हो वो लगा लेगा, जिसको इंटरेस्ट है। तो देखो अच्छा, हाँ सुन लो, अगर तुम लोग लीड कोड में अगर पहुंच गए 500-600 क्वेश्चन तक, तब तुम लोग अच्छे हो चुके, तो लोगों को खुद ही पता चलेगा तब तक। लेकिन हाँ, कोड फोर्सेस नाम की वेबसाइट है और कोड शेफ नाम की, तो वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसमें मतलब रेपुटेशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, तो तुमको उससे रेफरल मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लीड कोड। तभी हम लोग लीड कोड सजेस्ट करेंगे, लीड कोड पहले करो, फिर वहां पे जाना अगर अच्छे हो जाए वहां पे तो। हाँ देखो मेन ये देखो डिफरेंस क्या है लीड कोड कोड फोर्सेस में। हमने कोड शेफ नहीं लगाया, तो मेरे को कोड फोर्सेस के बारे में थोड़ा पता है। तो कोड फोर्सेस में ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम लीड कोड लगाओगे तो लीड कोड में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है, कि स्टैक का यूज़ कर लें या रिकर्शन यूज़ कर लें, डायनामिक प्रोग्रामिंग करें, ये सब ठीक है। ये सब कंपनीज में लेकिन नहीं पूछते हैं, कंपनीज में यही पूछते हैं। तो 2 चीज़ होती है, एक तो होता है DS एल्गो और एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। वो एक स्पोर्ट होता है। DS एल्गो जो है वो प्लेसमेंट में पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज ए स्पोर्ट होता है कि उसमें मतलब DS एल्गो के बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें फिर तो सेगमेंट्री और फेनरिक की कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कुछ कंपनी ऑफ कैंपस में पूछ लेती है, हम लोग सब पूछा गया। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन लेवल की हो गया ना, मतलब बहुत। अगर तुम बड़े पैकेज में जाना चाहते हो तो वो तो पूछेंगे, फिर वो तुमसे क्या ही पूछेंगे वरना। नहीं, ऑफ कैंपस में नॉर्मली 19 की थी वो। हाँ, तो मतलब अच्छी कंपनीज पूछती हैं। अभी तो डिफिकल्टी वैसे हाई हो गई ना थोड़ी। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोड फोर्सेस हमने किया। कोड शेफ तो पता नहीं, कोड शेफ भी अच्छा है वैसे। कोड फोर्सेस में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए है, तो उसमें तुम्हें मतलब मेन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही है ना। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो तुम तो स्टैक क्यू का कहाँ यूज़ करना है वो तो आराम से कर लोगे। तो कोड फोर्सेस लीड कोड के कंपैरेटिवली बहुत टफ है, मतलब उसको वो तो रेटिंग पे डिपेंड करता है। उसमें रेटिंग होती है कि तुम्हारा 800 से 800 पता नहीं 500 से लेकर 2600 रेटिंग, 2800 पता नहीं कितने रेटिंग तक के होते हैं। तो जो कम रेटिंग वाले वो आसान होते हैं। तो अभी ना जाना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा। लीड कोड लगाने से बैठ के बात के लिए बता रहे भाई। तो कोड फोर्सेस में मतलब यही है, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। अच्छा देखो, लीड कोड में बोलो सॉरी। हाँ बताओ। लीड कोड में डेली चैलेंजेस डेली कह रहा हूँ, वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। तो हर संडे को होता है और हर ऑल्टरनेट सैटरडे को होता है। वो हमेशा से देना याद से, तुम लोग की मतलब 1.5 घंटे का होता है, और उसमें तुम लोग ये रह जाएगा, प्रेशर में कोड करने की आदत हो जाएगी। और साथ ही साथ जब देखो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से स्टार्टिंग में तुम लोग से शायद 2 हो या फिर कब अच्छे हो गए तो 3 हो जाएंगे। तो बाकी जो ना हो उनका सोल्यूशन कॉन्टेस्ट के बाद हमेशा देख लिया करो, तो इसलिए रहेगा तुम सीख हो जाओगे। इसको अपलोडिंग कहते हैं ना इसको। Sir, is lead code good for beginners? ना बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तुमको कोडिंग आनी चाहिए, तुमको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए,
उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वगैरह ये सब कुछ आना चाहिए, तब लीड कोड पे जाओ। तो तब तक के लिए तुम लोग हैकर या फिर हैकर रैंक हैकर रैंक मतलब सही है, तुम्हें बिल्कुल कुछ ही नहीं आता लैंग्वेज का यूज करना, थोड़ा बहुत कर सकते हो जैसे देखो जैसे तुम C++ सीख रही हो, मैं जब सीख रहा था तो मैंने हैकर रैंक पे कुछ 40-50 क्वेश्चन लगाए होंगे। जब वो लगा लिए तो उसके बाद मैं तो सेकंड ईयर में आगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शुरू करा था पढ़ना, जब कोर्स पढ़ाया गया था कॉलेज में। तो जब वो पढ़ लिया उसके बाद फिर मुझको मैं लीड कोड में जाने की कोशिश करा, फिर लीड कोड में, लेकिन वो लोग STL यूज करते हैं तो STL फिर सीखना पड़ा था, क्या कहते हैं वेक्टर क्या होता है C++ में और अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, ये सब। तो उसकी बस 1 घंटे की वीडियो होती है, यूट्यूब में बस डाल दोगे तो तुमको मिल जाएगी। तो उतना सीख लो, उसके बाद फिर लीड कोड में ज्वाइन करो, उससे पहले ये सब मेन अगर तुमको लैंग्वेज के कुछ खास यूज नहीं आता है कि लूप कैसे चलाते हैं, जो भी बेसिक कमांड्स है तो हैकर कर सकते हो, मतलब थोड़ा देख लो, हैकर रैंक से स्विच कर लेना बाद में लीड कोड में, क्योंकि लीड कोड में मेन कंपनी वाले क्वेश्चंस होते हैं। हेलो, अरे यार ये लोग टैग्स के हिसाब से इजी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से भाई, उसमें स्टार्टिंग से लेकिन लीड कोड की इजी भी उतने इजी नहीं होता अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है बिल्कुल बिगिनर के लिए, तो वो लीड कोड के इजी भी, तो देखो स्टार्टिंग में यही फेज आएगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ नीलेश के साथ भी हुआ था। वो आराम से भाई तुम्हारा 1 महीने तुम करोगे, तुमसे लगे कुछ नहीं हो रहा तुमसे भाई, वो मतलब देखो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लोगों को बता देते हैं। स्टार्टिंग में तुमसे इजी भी नहीं होंगे, लीड कोड में जब तुम 200 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे इजी तुमसे तुरंत हो जाएंगे, इजी देखोगे तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। और फिर मीडियम में यही हाल होगा। हाँ सर, जिनको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है क्या वो लीड कोड पे इजी पे जा सकते हैं? बेसिक में तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स में हैश टेबल ये सब कुछ आता है? नहीं, मतलब इतना भी बेसिक नहीं, मतलब अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से। हाँ तो देखो, तुम सबसे पहले थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीख लो, वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लीड कोड में सबसे पहला क्वेश्चन हैश टेबल का क्वेश्चन है, तो हैश टेबल अच्छा खासा डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ तो पहले फर्स्ट ईयर का यही सजेस्ट करेंगे, पहले डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, उसके बाद जाओ। So for us as a beginner, we should first focus on hacker rank and then on algorithms. For algorithms, from where we need to learn algorithms and all that. algorithms तो तुम लोग करते करते सीखोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स सीखो, एल्गोरिथम्स ना सीखो। डेटा स्ट्रक्चर्स काम आएंगे। सर डेटा स्ट्रक्चर्स में ज्यादा रिकर्शन वगैरह आता है। देखो भाई, मेन क्या है, अभी तुम डेटा स्ट्रक्चर तुमने सीखा तो तुम ये मत सोचो कि मैं एक दिन में सारी क्यू की वीडियो देख ली, मैंने स्टैक की देख ली, डीपी देख लिया, मेरे को आ गया सब, ऐसा नहीं होगा। तुम पहले क्या करो, कोई एक टॉपिक उठाओ, जैसे हैश टेबल हो गया, स्टैक हो गया, कोई भी है। वीडियोस तो तुम्हें यूट्यूब में भरी पड़ी हो तो कमी नहीं यूट्यूब, तो किसी भी तुमने टॉपिक लिया, उस टॉपिक के तुम पहले टॉपिक को समझो क्या है। जैसे स्टैक ले लिया तो तुम स्टैक को समझो भाई स्टैक क्या होता है, और फिर तुम चाहो तो क्वेश्चन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन भी क्या है अभी होंगे नहीं, तो इससे तुम थोड़ी 5-10 वीडियोस देख लो कि लिखो कि गूगल क्वेश्चन विद स्टैक या नॉर्मली स्टैक प्रॉब्लम्स, कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो उससे स्टैक का यूज़ करके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो तुम उनकी वीडियो देख लो सीधे, तुम अभी दिमाग लाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सोचना, तुम सीधे सॉल्यूशन देख लो, तुम्हें बेसिक आ जाएगा कि स्टैक का यूज़ क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, कोडिंग में कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये आ गया तुमको। अब क्या करो, सीधे लीड कोड में जाओ। लीड कोड में टैग्स होते हैं, तो टैग्स होता है कि तुम्हें किस टॉपिक का टैग चाहिए और तुम्हें क्या डिफिकल्टी का टैग चाहिए, उसके बाद तुम्हें एक्सेप्टेंस रेट भी होता है उसमें। तुम सबसे पहले तुमने गए लीड कोड में, तुम स्टैक खोला, तुमने टैग सेलेक्ट किया, उसके बाद तुम करो इजी क्वेश्चन, इजी मीडियम हार्ड होगा तो इजी करो। इजी के बाद ही उधर होगा कि एक्सेप्टेंस रेट की कितने लोगों ने ट्राई किया, उसमें से कितने लोग कर पाए। मान लो किसी क्वेश्चन का एक्सेप्टेंस है 80%, जिसका मतलब ये है कि 100 लोगों ने ट्राई किया तो उसमें 80 लोग ही सॉल्व कर पा रहे उसको, तो मतलब वो आसान है 5% वाले रेट से। तो तुम वही कोई मतलब इजी एक्सेप्टेंस रेट वाले क्वेश्चन को लो और उसको लगाओ। स्टार्टिंग में तो नहीं होने तुमसे, बहुत मुश्किल, अगर होगा तो ठीक है। चलो तो क्या करो, हाँ बोल लो, फिर बता दूंगा। हाँ तो वही कुछ टाइम ट्राई करो, ये नहीं बिल्कुल गिव अप नहीं। अभी तो फर्स्ट ईयर वाले के पास तो टाइम है, तुम आधा घंटा 1 घंटा ट्राई कर लो। स्टार्टिंग में मेन ये रखो कि तुम देखो, अगर तुम्हें आइडियाज़ आ रहे दिमाग में तब तो ठीक, तुम सोचते रहो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, एक आइडिया नहीं आ रहा, तब फिर टाइम वेस्ट ही है तुम्हारा। तुम सीधे सॉल्यूशन देख सकते हो, क्वेश्चन की कमी नहीं है कि तुम्हारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, तुमने सॉल्यूशन देख लिया। अभी आगे और भी बहुत क्वेश्चन है, तुम बेसिक्स टारगेट ये रखो स्टार्टिंग में, तुम सॉल्यूशन पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हो, सबसे पहले वीडियोस देखो, फिर वीडियोस के कोई सॉल्यूशन खोलो, उनको समझो, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओगे, फिर भी क्वेश्चन नहीं होंगे। और स्टार्टिंग में एक दो महीना तुम्हारे ही दिमाग खराब होगा, क्वेश्चन नहीं हो रहे। और ये तो सबके साथ होता है, मेरे जितने दोस्त से बात हुई सबके साथ है। अभी कितने लोग गिव अप कर दिया, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था 1 महीना,
बाद में उन्हें देखा क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। देखो ये फेस तो आएगा ही, तो वही तुम लगे रहो थोड़ा, बाद में फिर वो होने लगते हैं, ऐसा नहीं है। Sir, I'm a beginner. I'm a completely a beginner. I didn't had that computer science subject in my 11th and 12th. So I'm in first year. I'm completely new to this subject. So I really wanted a guidance from you all for having. अंकिता, तो फिर तुम नीलेश से पूछ लो, उसका भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था। मेरा और हर्ष का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तो हम लोग तुमको उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे। अच्छा, नीलेश भैया बेसिकली ईगो पे ले लो, जो तुमसे अच्छा हो उसको सोचो कि टारगेट करो, उसको पीछे करना, फिर उससे पूछो क्या करना है। कहाँ कहानी बताए क्या इसको या नहीं? कहानी बताए, रहने दो यार, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा देखो, तुमको सबसे पहले तो तुमको कुछ नहीं आता ना, तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले तो मैंने सी सीखा था, ठीक। वो मैंने एक वीकेंड में लेटेस्ट सी पढ़ ली थी, सैटरडे संडे। वो भी मैंने भी वही स्टार्ट किया अभी फिलहाल। हाँ, तो उसमें पूरी बुक पढ़ने से पहले वीडियोस देख लो ना यार, पढ़ने से पहले वीडियोस देखो तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्यादा सही है। तो तुम बस वीडियोस देखो। ऐप है, सोलो लर्न ऐप है, उसे थोड़ा सा ज्वाइन किया है। ना ऐप छोड़ो, तुम सबसे पहले सी ऐप भी नहीं, ऐप भी सही है, सोलो लर्न से मैंने ही पढ़ा था, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले वीडियोस देखो, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो जब भी तुम कोई नई चीज पढ़ते हो तो तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुम्हारी नॉलेज किसी बेस पे नहीं है। लेकिन जब तुमने कहीं से सीख लिया, तुमने कहीं से वीडियो देख लिया, तुम्हें आया हल्का फुल्का समझ में, पूरा नहीं आया, लेकिन दिमाग में हल्का फुल्का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब तुम अगली बार कुछ पढ़ोगे कहीं से भी, तो उसी के बेसिस पे एक नई नॉलेज फॉर्म होगी, तो तुम आराम से कोरिलेट करोगे पुरानी नॉलेज के साथ, तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। तो वीडियोस का यही है कि तुम आराम से कहीं से भी देख लोगे, वीडियो ग्राफिक्स है सामने दिख रहा है, तो जब तुम पढ़ोगे वीडियोस का कौन सा मतलब कौन सा रिकमेंडेड है कि हाँ यहाँ पे जाके मैं देख लूँ? देखो बताएं। हाँ, तो हमने जो स्टार्ट किया तुमको करो C++ ट्यूटोरियल्स, तुमको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उनमें से जिसकी शक्ल अच्छी लगे देखना शुरू कर देना। अच्छा, ओके। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बाकी सब जो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग है, उसके लिए कहाँ से मैं? तुम लोग को सेकेंड ईयर में बेसिकली पढ़ाया जाता है ये कॉलेज में। अपने कॉलेज के भरोसे ना रहो भाई, कॉलेज वाले क्या पढ़ा देंगे तुमको, छोड़ो उसको, भूल जाओ। अपने सीनियर से बोल लेना। अभी हम लोग के पास मतलब मुझे भी खुद से ही ट्राई करना है, क्योंकि जितना हम खुद से करेंगे उतना बेटर होगा, डिपेंड नहीं होना है। तो देखो कॉलेज को भूल जाओ, ये जान लो डेटा स्ट्रक्चर तुमको सीखना है, ठीक। उसके बाद फिर YouTube पे सर्च करना शुरू कर दो, डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल ये वो तुमको मिल जाएंगे मोस्टली। तो तुमको सबसे देखो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर तो लिख लो, चाहो तो स्टैक, क्यू, हैश टेबल, ट्रीज और प्रायोरिटी क्यू। अभी बताया कि ना बता, रहने दो प्रायोरिटी क्यू, फिर बता दो हीप। चैट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं स्क्रीनशॉट। रुको मैं अरे यार वो सब तो वो सुनो, सब बताने की जरूरत नहीं भाई, वो सीखते सीखते समझ जाएंगे ये लोग। तो थर्ड ईयर से क्या तो कोई वर्कशॉप रख देना इन लोग के लिए, बस बेसिकली बात खत्म। हाँ, तुम अभी रिसोर्सेज पे भी हम पे ना डिपेंड करो कि हम बताए रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज अभी कमी नहीं है। देखो हम लोग तो बताने आए थे कि प्लेसमेंट का किसी ने, हम लोग फंस गए यहाँ पे। हाँ, देखो मेन बात और एक ये भी पॉइंट होता है कि हर किसी से समझ नहीं आता, तो जितना तुम और करती जाओगे तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी कि तुम्हें किस फॉर्म में ज्यादा समझ में आता है। तो वही तो मैं अभी C++ का वो ट्यूटोरियल्स YouTube पे देख लूं और लेट अस सी ट्राई करूं फिर। हाँ, कहीं से भी तुम मल्टीपल प्रोग्रामिंग चाहे C हो या फिर C++ हो, फिर जाओ हैकर रैंक पे जाना, हैकर तब भी मुश्किल हो जाता है। हैकर रैंक पे जाओ, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पे जाओ और थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा, तुमको आइडिया लग जाएगा क्या टेस्ट केस क्या होता है, टाइम लिमिट एक्सीड क्या होता है, और ये सब क्या होती है, मतलब ये सब टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। अच्छा, वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, बेसिक तुम इतना करना शुरू करोगे, फिर धीमे धीमे तुमको और आगे पता हाँ, बस कहीं से भी करो, बस जस्ट गेट स्टार्टेड, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर सॉल्यूशंस आर आल्सो प्रोवाइडेड देयर। हाँ रहते हैं। हाँ, देखो हैकर रैंक पे रहते हैं ट्यूटोरियल, लेकिन देखो लीड कोड में की कम्युनिटी सबसे अच्छी, तो लीड कोड में तुम्हें एक क्वेश्चन के 100 सॉल्यूशन के ऊपर ले जाएंगे। अभी तुम वहीं पे करो। हम हैकर रैंक से लीड कोड स्विच होने में को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब तुम एक दो में देखो हैकर रैंक सिर्फ लैंग्वेज बेसिक्स के लिए कि लैंग्वेज का लूप कैसे चलाते हैं, बेसिक्स के लिए यूज करो, बाकी क्वेश्चंस लगाने के लिए मेन लीड कोड करो। और स्टार्टिंग में तुमको यही होगा, तुम्हें क्वेश्चन नहीं होंगे, तुम्हें सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए पहले तो फिर वही लेट अस सी और ये हैकर रैंक की देखो सॉती में एक टेक्स्ट डाल दिया, उसमें आई गेस इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो देख लेना बस। ओके, आई हैवंट चेक्ड। ठीक। हाँ,
और किसी को कोई क्वेश्चन है? देखो तुम लोग को डाइव करना पड़ेगा 2 चीजों में, तब जाके तुमको आइडिया लगेगा क्या हम लोग पूरा बता सकते हैं। मेन रिसोर्सेज तुम खुद सर्च कर सकते हो। देखो डेवलप थोड़ा बहुत कर लो। लीड कोड के लिए क्या हमको जावा से कर सकते हैं या फिर हमको C++ सीखनी पड़ेगी? किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं। लीड कोड में 10-15 लैंग्वेज है, पता नहीं 10-15 लैंग्वेज है उसमें, तुम वो लैंग्वेज की चिंता नहीं, लेकिन बेस्ट रहेगा। अरे छोड़ो तुम लोग एक बार एक सेकंड तुम लोग एक बार खुद जाके leadcode.com पे जाओ, खुद से देखो क्या क्या है वहाँ लीड कोड है ना। और सारे प्लेटफॉर्म मोस्टली तुमको ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में कोड करने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसका UI भी काफी अच्छा है, बाकी सबकी UI ऐसी बोरिंग है, लीड कोड का काफी अच्छा है। अच्छा कुछ ऐसे कर सकते हैं जैसे कोडशेफ पे पहले प्रैक्टिस करके फिर प्रैक्टिस करोगे तो हम लीड कोड से कोडशेफ पे जाने के लिए बता रहे। कोडशेफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता है। स्टार्टिंग में तुमको बहुत हल्का क्वेश्चन मिल जाएंगे लीड कोड को कोडशेफ में, लेकिन फिर उसमें तेजी से डिफिकल्टी बढ़ती है और उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। हाँ मेन बात यही है। देखो मेन चीज हमें तुम्हें ये बता रहे हैं अभी, तुम्हें मेन क्या देखना है कि रिसोर्सेस है कि नहीं उसके। अगर तुम्हें क्वेश्चन अच्छे है लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं दिए अच्छे, तो तुम क्या कर लोगे? सॉल्यूशन होने चाहिए ना। तो मेन वही करो, तुम किसी प्लेलिस्ट देख लो, उसमें क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, उनको लगाओ, वीडियोस समझ आ जाएंगे आराम से, उनको ट्राई करते हैं। देखो ये है, अगर तुमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना है अच्छा, तो तुम कोडशेफ पे जाओ, ठीक है। अगर तुमको सिर्फ प्लेसमेंट्स निकालने हैं तो मोस्टली तुमको कभी भी कोडशेफ और कोडफोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीड कोड इनफ है। नहीं कुछ कंपनीज के लिए होता है, लेकिन हाँ तुम एक बार लीड कोड करना तो उस लेवल पहुंचे तुमको खुद आइडिया लग जाएगा तुमको क्या करना है, ठीक। वो बहुत टारगेट रखो कि पहले अच्छा खासा कोडिंग लैंग्वेज है तुम लोग। अभी तुम ये इतना ना सोचो कि लीड कोड करो कोच, तुम सब कुछ देख लो ना, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, जिसमें पसंद आ रहा है वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसका UI अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन ये बता रहे हैं लेने के लिए लीड कोड बहुत फायदा करता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बन गया ना, लीड कोड में इतने क्वेश्चन लगा तो तुम इस लेवल के होगे। तो हम लोग ने ये क्या क्या हम लोग रेफरेंस लेते हैं, हमने लीड कोड में इतने क्वेश्चन लगा, हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग इतनी, उसमें हमको रेफर कर दो, हमको बुझा रहा है, तो वही हमें बताने आए थे बस। हाँ तो ये रेफरल में तो काफ़ी अच्छा काम मिल जाता है। बाकी क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे फिर वो डिपेंड करता है तुम्हें कितना आता है। अभी हमें रेफरल तो मिल गया, अब क्वेश्चंस बतानी होते कि नहीं होते, वो किस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सब हमको नहीं पता फिर। अगर लेकिन ये अगर तुम्हें कोडफोर्सेस में तुम अगर 2000 रेटिंग है तुम्हारी 2100, वो तो तुम तो कोई भी, फिर तो तुम इंडिया के कोई भी मेरे हिसाब से निकाल ही लोगे, फिर कौन सा बचा अगर तुम्हारी 2000 रेटिंग है उसमें। अगर तुम्हारी 2000 रेटिंग है तो कंपनियां तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुमको बुलाएंगी। हाँ, और जो तुम फर्स्ट ईयर वाले तुम आराम से पहुंच भी सकते हो, वो बात नहीं है। देखो सबसे पहले तुम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, उसको अच्छी करो, और फिर वही जो बताया था हैकर रैंक पे जाके करो, फिर डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, और फिर उसके बाद लीड कोड पे आ जाओ। लीड कोड पे अगर डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, उसके बाद तुम लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा उतने टाइम में क्या करना है। क्योंकि बस पागलों जैसे एक चीज तो करो नहीं, इधर उधर तो जाओगे, तो इधर उधर जाने में तुम लोग करोगे। 4 साल है यार, टेंशन फ्री करो अभी। हाँ वही कोई जल्दी नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स के लिए केवल अभी YouTube का ही सहारा ले, मतलब और कोई पेड कोर्स ना करना। अगर पेड कोर्स करना तो मुझको पैसे देना, मैं पढ़ा दूंगा। हाँ पेड कोर्स। अरे बाप रे, जॉब तो मिल नहीं रही, यही कर लेता हूँ। अरे मिल जाएगी। पेड कोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पेड कोर्सेज नहीं, काफी मुफ्त के हैं प्ले स्टोर पे। आप अगर नहीं यहाँ पैसा इतने उड़ाने के लिए खर्च करने तो उड़ा दो, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा 12th लेवल के जो मतलब हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप, अब पता नहीं कि वो है कि नहीं, तो वो क्या ये पाएंगे? 12th में बीटेक में सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। इंग्लिश वगैरह शायद पढ़ाया जाता है 12th में ना, डेटा थोड़े बहुत लाइक रिकर्जन हो गया और ये टेक्नोलॉजी सिखा दी जा रही है। जैंगो या हाँ Django सिखाई जा रही है, मेरे भाई को भी सिखाई गई। हाँ मशीन लर्निंग और Django 12th वालों को पढ़ा रहे हैं, पता है भाई। अगर बाप रे 5 साल के बच्चों को भी पढ़ाने लगे। अभी यहाँ पे फ्लैश